Hi guys, welcome back to Success Corner. We are here with daily chemistry MCQs. In today's MCQs, we'll cover the topic classification of elements and periodic properties. So before we start, don't forget to like, subscribe and share this video. Question 1. Ionization energy 1. Increases with increasing positive charge and decreases with decreasing negative charge. No, this is a wrong statement. 2. Down the group increases with increase in number of shells. No, ionization energy decreases. 3. In period decreases due to increase in Z effective. No, in period it does not decrease. 4. Generally decreases due to decrease in Z effective. Yes, this is the correct statement because we know that ionization potential is directly proportional to the Z effective or the effective nuclear charge, which is directly proportional to plus charge upon negative charge. So the correct answer is option 4. Question 2. Which order for spin only magnetic moment is correct? So we know that spin order magnetic moment जो होता है उसका formula mu is equal to root n into n plus 2 where n is unpaired electrons. So सबसे ज़्यादा spin only magnetic moment किसका होगा? The element which has the most number of unpaired electrons. So यहाँ पे सबसे ज़्यादा unpaired electrons किस में है? Mn plus 2 में. उसके बाद आता है Fe plus 2, then Ti plus 3 and then Sc plus 3. So करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4. Question 3. The maximum number of electrons present in outermost shell of S, P, D and F block elements are respectively. इसमें कभी कभार लोग गलती कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि D में 10 आएगा, F में 14 आएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल में सबको याद रहता है S में 2 होता है, P में 8 होता है. यस, दैट्स करेक्ट. बट D और F में आपको याद रखना है कि आउटर मोस्ट शेल में 2 ही होते हैं क्योंकि D में 8 जो होते हैं वो आउटर मोस्ट में नहीं होते, वो उसके पहले वाले शेल्स में होते हैं. सो आउटर मोस्ट जो होता है वो NS2 ही होता है. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन 1, दैट इज 2, 8, 2, 2. Question 4. Which of the following order of size is correct? जब साइज की बात आ जाए और जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिया मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हो, सो जब साइज का ऑर्डर जो आता है इट इज ऑलवेज इन द ऑर्डर ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल इज ग्रेटर देन कैटायन. सो यहाँ पे ये ऑर्डर कौन सा फॉलो कर रहा है? हमारा ऑप्शन 4, इट इज Na प्लस इज लेस देन नियॉन इज लेस देन Fe माइनस इज लेस देन O2 नेगेटिव. सो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4. Question 5. Correct order of first ionization potential are: Option 1. Lithium is less than boron is less than beryllium is less than carbon. Yes, this is correct because यहाँ पे लोगों को बोरॉन और बेरिलियम में कंफ्यूजन हो जाता है, बट हमें याद रखना है दैट बेरिलियम में NS2 जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें पेनिट्रेशन पावर जो होता है इज ग्रेटर देन NS2P1. Therefore, बेरिलियम जो होता है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा. ऑप्शन 2. ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन इज लेस देन फ्लोरीन. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज नाइट्रोजन में क्या है हमारा हाफ फिल्ड आ जाता है, तो इसीलिए उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. बेरिलियम इज लेस देन नाइट्रोजन इज लेस देन नियॉन. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज नियॉन जो है नोबल गैस है, इसमें इसका सबसे ज़्यादा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, फुल्ली फिल्ड है. नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है एंड बेरिलियम फुल्ली फिल्ड है बट S है. सो देयरफॉर ये भी करेक्ट है हमारा. सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन 3, दैट इज 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट. Question 6. Which of the following is not related with lanthanoid contraction? 1. Atomic radius of Zr and HF is almost same. Yes, ये almost same होता है because of lanthanoid contraction. 2. Ionization energy of Hg is more than that of Cd. Yes, this is also because of lanthanoid contraction. 3. Atomic radius
of Al and Ga is almost same. ये same तो है, लेकिन it is not because of lanthanide contraction, it is because of transitional contraction. For atomic radius difference between ion and Tl is less than that of Ga and ion. Yes, because आयन और टीएल के केस में लैथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है तो एटॉमिक रेडियस सेम हो जाता है. सो क्वेश्चन में बात की है नॉट रिलेटेड विद लैथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. सो ये आ गया हमारा ऑप्शन 3. क्वेश्चन 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मतलब जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका हाइड्रोक्साइड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. Therefore, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2, दैट इज MgOH होल ट्वाइस. क्वेश्चन 8. The compound XOH is likely to act as a base if compared to hydrogen X has. So हमें पता है that metal hydroxides जो होते हैं, metal hydroxides are basic. That means X should be a metal. अब प्रॉपर्टी जो होगी वो मेटल वाली ही फॉलो करनी पड़ेगी इसको भी. सो ऑप्शंस में देखो कि मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें. सो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा इसमें लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज ऑप्शन 2, बिकॉज मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्वेश्चन 9. स्मॉलेस्ट कैटायन एंड स्मॉलेस्ट एनायन आर रिस्पेक्टिवली. काफी सिंपल क्वेश्चन है ये. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज हाइड्रोजन प्लस एंड fluorine negative. Question 10. If Aufbau rule will not followed, then calcium would be placed in. So हमें पता है अगर Aufbau rule follow नहीं हुआ तो calcium का atomic number होता है 20, that means 20 electrons होंगे उसमें. So 20th electron जो होगा अगर Aufbau rule follow नहीं होगा, so it will enter the 3d orbital. So if enters the d orbital, so कौन से ब्लॉक में प्लेस होगा वो d ब्लॉक. So करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 3. So these were today's MCQs. ये जो चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला, ये थोड़ा याद करने वाला चैप्टर है. इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, शायद एक भी नहीं होगा, बट इसमें मेमोराइज करना पड़ेगा. इसमें थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं, उन एक्सेप्शंस को अच्छे से याद रखना है क्योंकि नीट में एक्सेप्शंस के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.